آئے ہم خدا ان کے کلام کو ویلکم کرتے ہیں. پریز گاڈ. تعریف کلام ہو خدا ان کے نام. جلال ملے خدا ان کے نام. تعریف ہے یسوع کے نام. ہاللویا. سب بولیں خدا ان کا نام مبارک ہو. میرے عزیزوں ہم خدا ان کا شکر کرتے ہیں آج کی صبح کے لیے خاص طور پر کہ جو خدا نے ہمیں دی ہے اور اس چمکدار دن کے لیے بھی, اور سب سے بڑھ کر یہ کہ ہماری زندگی کے لیے, صحت کے لیے, سلامتی کے لیے, ہمارے ماں باپ کے لیے, بہنوں بھائیوں کے لیے, عزیزوں کے لیے جن کو خدا نے سلامتی میں رکھا. اور سفر میں ہماری خدا نے مدد کی, کیونکہ بہت سے ایسے ہیں جن کے ساتھ بہت سے حادثات جو ہیں وہ رونما ہو رہے ہیں, گزر رہے ہیں ان پر, لیکن خدا ان کا شکر اس نے اپنے مذبح اور اپنے کلام کے سامنے اس کے گرد ہمیں جمع کیا ہے تاکہ آج ہم زندگی کو حاصل کر پائیں. آئیے ہم خدا ان کے کلام میں سے سنتے ہیں, دیکھتے ہیں, پڑھتے ہیں, اور پیدائش کی کتاب کا پہلا باب ہم نکالتے ہیں اور اس کی 11ویں آیت کو ہم پڑھتے ہیں, 11ویں اور 12ویں آیت کو. کوئی بھی بھائی سے بلند آواز میں پڑھے خدا ان کے لوگوں کے لیے. جی پلیز. اور خدا نے کہا کہ زمین گھاس اور بیج دار بوٹیوں کو اور پھل دار درختوں کو جو اپنی اپنی جنس کے موافق پھلیں, ہاں جی, اور جو زمین پر اپنے آپ ہی میں بیج رکھیں اگائے. ہاں جی, اور ایسا ہی ہوا. اور ایسا ہی ہوا. 12ویں آیت بھی پڑھیے گا. تب زمین نے گھاس اور بوٹیوں کو جو اپنی اپنی جنس کے موافق بیج رکھیں, ہاں جی, اور پھلدار درختوں کو جن کے بیج ان کی جنس کے موافق ان میں ہیں, ہاں جی, اگایا. زمین نے کیا کیا؟ اگایا. جی. اور خدا نے دیکھا کہ اچھا ہے, کہ اچھا ہے. خدا ان کے کلام کا پڑھا جانا, سنا جانا ہمارے لیے باعث برکت. تو ایک اور حوالہ لیں گے ہم جلدی سے, ایک اور حوالہ لیں گے پلیز. نکالیے گا میرے ساتھ مقدس متی رسول کی معرفت لکھی گئی خدا یسوع مسیح کی انجیل, چیپٹر 13 ہم نکالیں گے, 13واں باب, اور پہلی آیت سے لے کے 9ویں آیت تک اسے بلند آواز میں پڑھیں گے. کوئی بھی بھائی سے بلند آواز میں پڑھیں. اسی روز یسوع گھر سے نکل کر جھیل کے کنارے جا بیٹھا, ہاں جی, اور اس کے پاس ایسی بھیڑ جمع ہو گئی, ہاں جی, کہ وہ کشتی پر چڑھ بیٹھا, ہاں جی, اور ساری بھیڑ کنارے پر کھڑی رہی. جی. اور اس نے ان سے بہت سی باتیں تمثیلوں میں کہیں, جی, کہ دیکھو ایک بونے والا بیج بونے نکلا, دیکھو ایک بونے والا بیج بونے نکلا. جی. اور بوتے وقت کچھ دانے راہ کے کنارے گرے اور پرندوں نے آ کر انہیں چگ لیا. جی پلیز. اور کچھ پتھریلی زمین پر گرے, اور کچھ پتھریلی زمین پر گرے, جہاں ان کو بہت مٹی نہ ملی. جی. اور گہری مٹی نہ ملنے کے سبب سے جلد اگ آئے. ہاں جی. اور جب سورج نکلا تو جل گئے. ہاں جی. اور جڑ نہ ہونے کے سبب سے سوکھ گئے. ہاں جی. اور کچھ جھاڑیوں میں گرے, ہاں جی, اور جھاڑیوں نے بڑھ کر ان کو دبا لیا. جھاڑیوں نے ان کو دبا لیا. اور کچھ اچھی زمین میں گرے, اور کچھ اچھی زمین میں گرے. جی. اور پھل لائے. اور پھل لائے. اچھی زمین میں گرے, اور کچھ اچھی زمین میں گرے, اور پھل لائے. اور پھل لائے. کچھ 100 گنا, کچھ 100 گنا, کچھ 60 گنا, ہاں جی, کچھ 60 گنا, کچھ 30 گنا. کچھ 30 گنا. جس کے کان ہو وہ سن لے. جس کے کان ہو وہ سن لے. ایک اور حوالہ لیں گے, کھڑے کھڑے ہم پڑھ لیں گے تو ذرا زیادہ اچھا ہو جائے گا. جی پلیز نکالیے گا اسی چیپٹر کا 13ویں باب کا ہم نکالیں گے, اور 24ویں آیت سے نیچے کی طرف ہم پڑھیں گے. جلدی سے پڑھیے گا پلیز. اس نے ایک اور تمثیل ان کے سامنے پیش کر کے کہا, جی, کہ آسمان کی بادشاہی اس آدمی کی مانند ہے, جی, جس نے اپنے کھیت میں اچھا بیج بویا. ایک بیج کھیت میں اچھا بیج بویا, مگر لوگوں کے سوتے میں اس کا دشمن آیا, ہاں جی, اور گہیوں میں کڑوے دانے بھی بو گیا. اور اچھے دانوں میں گہیوں میں کڑوے دانے بھی بو گیا. جی. بس جب پتیاں نکلی اور بالیں آئیں, بس جب پتیاں نکلی اور بالیں آئیں, تو وہ کڑوے دانے بھی دکھائی دیے. جی پڑھتے جائیں. نوکروں نے آ کر گھر کے مالک سے کہا, ہاں جی, خداوند کیا تو نے اپنے کھیت میں اچھا بیج نہ بویا؟ یہ سوال ہے, کیا خداوند تو نے اچھا بیج نہ بویا تھا؟ اس میں کڑوے دانے کہاں سے آ گئے؟ سوال ہے, اس میں کڑوے دانے کہاں سے آ گئے؟ اس نے ان سے کہا, یہ کسی دشمن کا کام ہے. اس نے ان سے کہا یہ کسی دشمن کا کام ہے. جی. نوکروں نے اس سے کہا, ہاں جی, تو کیا تو چاہتا ہے کہ ہم جا کر ان کو جمع کریں؟ ہاں جی. اس نے کہا, نہیں, ایسا نہ ہو کہ کڑوے دانے جمع کرنے میں تم ان کے ساتھ گہیوں بھی اکھاڑ لو. ہاں جی. کٹائی تک دونوں کو اکٹھا بڑھنے دو. ہاں جی. اور کٹائی کے وقت میں کاٹنے والوں سے
कह दूंगा हाँ जी, कि पहले कड़वे दाने जमा कर लो कि पहले कड़वे दाने जमा कर लो और जलाने के लिए उनके गट्ठे बांध लो और जलाने के लिए उनके गट्ठे बांध लो और गहियों मेरे खत्ते में जमा कर दो। और गहियों मेरे खत्ते में जमा कर दो। खुदा उनके कलाम का मेरे अजीजों पढ़ा जाना, सुना जाना हम सबों के लिए बाइस बरकत, बाइस नसीहत, बाइस ताकीद, तंबीह और खुशहाली और बहाली और इस्लाह का काम करे। और मेरे अजीजों, खुदावन जब समझाता है तो वो हमारे लिए बड़े शर्फ की बात होती है। हम सब यहाँ पर आए हैं खुदावन के नाम को इज्जत देने के लिए, उससे कुछ समझने के लिए। हालेलुया। गॉड ब्लेस यू ऑल। तशरीफ रखिए। खुदावन आपके साथ रहे। गॉड ब्लेस यू। खुदा आपको बरकत दे। हाथ हिलाकर बताइए आप में से कितने लोग हैं जो खुदावन के हुजूर में खुशी के साथ आज यहाँ पर। गॉड ब्लेस यू। ताली बजाइए अपने लिए, ताली बजाइए अपने लिए। हालेलुया। मेरे अजीजों, देर के बगैर हम खुदावन के कलाम की तरफ बढ़ते हैं। हमारा मौजू है, मौजू बड़ा प्यारा है और आपको भी पसंद आएगा। खुदा का बीज। क्या मौजू है? अगर इससे हम अंग्रेजी में बोलें तो द सीड ऑफ गॉड, खुदा का बीज। अगर इसे और आसान करते जाएं तो ये आपके लिए होता जाएगा। आपको पता है, बाप जो है, बाप जब बेटे को खाना खिलाता है या बच्ची को खाना खिलाता है या बच्चे को खाना खिलाता है, माँ कह लें, बाप कह लें, माँ बाप, आमीन, तो वो बड़े जतन करता है कि किसी तरीके से खा ले। वो कहता है नहीं मामा मैंने नहीं खाना, है ना। मामा कहती है अच्छा चलो बेटा ये इसके साथ फ्लेवर की हुई चीज के साथ खा लो, किसी मीठे के साथ खा लो, है ना, चलो मैंगो के साथ खा लो, चलो मेलन के साथ खा लो, खरबूजे के साथ, है ना, होता था ना। इनफैक्ट यहां तक कि हमारा जी ना चाहे तो हम साथ में अचार मंगवा लेते हैं, साथ में चटनी बना लेते हैं, है ना, होता है कि नहीं। खुदा को बरकत दे। तो खुदावंद भी ऐसे ही चाहता है। जितना बेटा आसानी से समझना चाहते हो मैं समझा दूंगा, खिला दूंगा। समझाने का मतलब है ऑब्जर्व कर लेना। जब मैं समझा रहा हूं तो लिख लेना कहीं दिल के किसी, है ना, किसी एक सफे के ऊपर। हालेलुया। गॉड ब्लेस यू। तो क्या है हमारा खुदा का बीज? इसको खुदा का तुखम भी कहते हैं, है ना। खुदा का तुखम खुदा की नस्ल भी होता है, आमीन। और खुदा की नस्ल खुदा की औलाद भी होती है, और खुदा की औलाद ही दर हकीकत खुदा का बीज होता है, खुदा का सीड होता है, आमीन। और आप जैसे समझते हैं कि दुनिया का कोई भी बीज किसी भी जिन्स का हो उसे बोना जरूर पड़ता है। बोए बगैर वो उगेगा नहीं, और उगे बगैर वो फल नहीं लाएगा और किसी को छांव या फल नहीं देगा। हालेलुया। बोया जाना सबसे खासुल खास इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ योर लाइफ, मैं कहूंगा बीज का सबसे जिंदगी का खास तरीन हिस्सा और सबसे बड़ी ट्रैबुलेशन का हिस्सा, सबसे बड़ी मुसीबत का हिस्सा बोया जाना। हालेलुया। और याद रखिए, अगर किसी को बो दिया गया है तो इसका मतलब उसे एक इम्तिहान से गुजारा गया है, आमीन। किसी एक बीज को, चाहे वो किसी भी चीज का हो। हालेलुया। हमने यहां पर 2-3 हवाले पढ़े और आप बड़े इन हवालों से बड़ी देर से, पॉसिबल है बचपन से जब से आपने होश संभाली होगी, बड़े भी बुजुर्ग भी इन हवाला जात से काफी ज्यादा इन्फॉर्म्ड होंगे, काफी जान पहचान होगी इन हवालों के बारे में आपकी, आमीन। लेकिन आपने मैसेज में रह के इन हवालों को शायद किसी तरह से ना समझा हो या समझा हो, आमीन। लेकिन चलें आज हम इसको समझने की कोशिश करते हैं। द सीड ऑफ गॉड, खुदा का बीज। हालेलुया। पाक कलाम में लिखा है, मुकद्दस पौलुस रसूल फरमाते हैं कि कोई अपने आप को पौलुस का कहता है और कोई अपने आप को अपुल्लोस का कहता है। कितने लोग हैं जिन्होंने ये बात पहले सुनी हुई है? गॉड ब्लेस यू ऑल। खुदा आपको बरकत दे। यहां पर वो क्या कहना चाहता है कि कोई ऐसा ना कहे कि मैं किसका हूं और किसका नहीं हूं, क्योंकि शायद पौलुस ने बोया हो और क्या है, पानी किसने दिया हो? अपुल्लोस ने। और बढ़ाया किसने है? इसका मतलब क्या है कि बढ़ाने वाला, उगाने वाला कौन है? खुदा है। लोग बड़ा, गॉड ब्लेस यू ऑल, खुदा को बरकत दे, तारीफ हो खुदा उनके नाम की। मेरे अजीजों ध्यान से सुनिएगा, ये बड़ी सादा सी बातें हैं जो समझ आने वाली हैं। हालेलुया। मेरे अजीजों, एक जमाना था, खुदा ने एक जमीन पर एक कपल को पैदा किया, सबसे पहले मर्द को, और उसके बाद क्या किया? हवा को पैदा, उसकी बीवी को पैदा किया। और चूंकि बीवी यानी औरत जो है उसको खेती भी कहा गया है। खेती मीन्स वो जगह जहां से औलाद दुनिया में आती है, इन सिंपल वर्ड, आमीन। और वहां पर बीज है, लेकिन बीज की बारावरी खुदा करता है, चाहे वो अच्छा बीज हो या बुरा बीज हो। खुदा ने जमीन को हक दिया है कि वो अच्छा या बुरा जो भी बीज है उसे उगाए, और जमीन इस बात की क्या है? ताबे है। क्या आपने यहां पर पैदाइश की किताब में नहीं पढ़ा कि खुदा ने आगाज में क्या किया?
اس نے کہا کہ زمین پھلدار پودوں کو اور جڑی بوٹیوں کو جو اپنے اندر بیج رکھتی ہیں, ہے نا, اور پھلدار درختوں کو, جو کچھ بھی وہاں پر لکھا ہے, میں اونچ نیچ کر سکتا ہوں, اس میں ہو سکتی ہے تھوڑی بہت, لیکن مجھے معاف کیجئے گا. تو کیا اس نے کیا کیا, کہا کہ وہ اگائے. اگر آپ اس کو انگریزی کانٹیکسٹ میں پڑھیں تو میں آپ کے لیے پڑھ اس لیے رہا ہوں کہ آپ کو تھوڑا سا اس بارے میں پہچان ہو کہ یہاں پر لفظ کیا لکھے ہیں. اینڈ گاڈ سیڈ, اور خدا نے کہا, لیٹ دا ارتھ برنگ فورتھ گراس. لیٹ کا مطلب کون کون بتائے گا, کتنے لوگ پڑھے لکھے ہیں؟ یہ لیٹ کن فکروں میں استعمال ہوتا ہے؟ لیٹ, ہاں, گاڈ بلیس یو, تالی بجائیں بھائی کے لیے. زمین کیا کرے, ہونے دے. کبھی کبھی زمین ہونے نہیں دیتی, یہ بھی میں آپ کو بتاؤں, زمین ہونے نہیں دیتی. اور کیوں نہیں ہونے دیتی؟ آپ نے پڑھا ہے متی کی انجیل کے 13ویں باب کی پہلی سے نامی آیت میں, جب آپ نے پڑھا کہ کچھ راہ کے کنارے گرے, ہے نا, کچھ پتھریلی زمین میں گرے ہیں, کچھ جاڑیوں والی زمین میں, کانٹے دار زمین میں گرے ہیں, ایسا کچھ ہے نا. ان کے ساتھ عجیب و غریب بیج اچھا تھا, بیج برا نہیں تھا, بیج برا, بیج اچھا تھا, لیکن بیج گرا بڑی غلط جگہ پر. کیا خداوند نے یہ لائن کس لیے بولی ہے؟ اس کو پڑھیے, کبھی پڑھا. دیکھیں, ہر مسئلے کا حل ایک ہی چیپٹر میں نہیں ہے. ہر بیماری کا حل ایک شہر, ایک علاقے, ایک ڈاکٹر, ایک میڈیکل سٹور پر نہیں ہے. اگر میں غلط ہوں تو بتائیے, سب بولیے آمین. تو پھر آپ کو ٹریول کر کے کہیں دوسرے شہر میں, کسی دوسرے ملک میں, یہاں تک کہ یورپ, امریکہ اور انگلینڈ میں بھی آپ کو اپنے جسم کو صحیح رکھنے کے لیے, ہے نا, اپنے علاج کے لیے جانا پڑتا ہے کہ نہیں؟ تو کسی ایک آیت, ایک ہی چیپٹر میں آپ کے مسئلے کا حل نہیں ہے. آمین. آپ کو اس کے لیے چھان بین کرنی پڑے گی, ڈھونڈنا پڑے گا, تلاش کرنا پڑے گا کہ آپ کے مسئلے کا حل کہاں پر پڑا ہے. تو یہ کیا کہہ رہا ہے؟ پھر میں نے آسمان میں سے کسی اور کو یہ کہتے سنا, اے میری امت کے لوگوں, اس میں سے کہاں سے نکل آؤ بھائی. یہاں تو بابل کی بات ہے. کیا ہے بابل؟ میں نے آپ کو بتایا ان شارٹ ورڈ, دنیا کا تنظیمی نظام تنظیمی بیج, دنیا کا ڈینومینیشنل سسٹم تنظیمی سسٹمیٹک بیج پیدا کرتا ہے, اور وہ سسٹمیٹک بیج کو بو رہا ہے. آمین. انفیکٹڈ بیج کو بو رہا ہے. آمین. تو کیا یہاں سے, اب یہ کیا ہے, کہاں سے نکلنا ہے؟ کون ہے بابل؟ وہ پتھریلی زمین آپ کا بابل ہے, جہاں سے آپ نے نکلنا ہے. آمین. آمین. یہ بابل جو ہے, اس کو بیبلیون بھی کہا گیا ہے. آمین. بیبلیون کیا تھا؟ دا ٹاور آف بیبلیون, برج, بابل کا برج. میں نے بتایا اس کو, اس پر میں جانا نہیں چاہتا, ٹائم نکل جائے گا. فلور ہیں, اور فلور اسی بات کا, اور اس میں سب سے نیچے بنیادی کون ہے؟ رومن کیتھلکس. اور یہ سچی بات ہے, اور وہ کہتے بھی ہم سب سے پہلے تھے, حالانکہ وہ سب سے پہلے نہیں تھے, کیونکہ سب سے پہلے تو سچ تھا, اور سچ حق تھا, خدا تھا, اور خدا سب سے پہلے تھا. اس سے پہلے کہ زمین پر کوئی, ہاللویا, تعریف و خدا کے نام, اس سے پہلے کہ زمین پر کوئی ہائبرڈائز کرتا, کوئی گڑبڑ پیدا کرتا, اور بابل کا مطلب بھی کیا ہے؟ گڑبڑ ہے, گڑبڑ. آمین. اور بابل کا برج بھی اپنا نام پیدا کرنے کے لیے, آج دنیا کی بڑی بڑی تنظیمیں کیا کر رہی ہیں؟ اپنا نام پیدا کرنے کے لیے ایک کیا بناتی ہیں؟ برج بناتی ہیں. آپ ساتھ رہیں گے تو برکت ملے گی. میرے عزیزوں, میں آپ کو بی اویئر کر رہا ہوں, اور یاد رکھیے گا, پاپا کی, ماما کی, ہے نا, بڑے بھائیوں کی, اور سمجھدار لوگوں کی, آپ کے بزرگوں کی, آپ کے ایلڈرز کی, جو گھر میں ہوتے ہیں. کبھی زندگی میں آپ کو باتیں یاد آتی ہیں, جب آپ پریکٹیکل لائف میں جاتے ہیں تب بہت دیر ہو چکی ہوتی ہے. تب آپ اپنے بچے کو سمجھاتے ہیں, بیٹا ایسا مت کر. وہ کہتا ہے, ماما میں نے آپ کی تصویروں میں دیکھا, آپ بھی ایسی ہی تھی. بیٹا ایسا مت کر. بولے گا, پاپا میں نے تصویروں میں دیکھا ہے, آپ بھی ایسے ہی تھے, تو میں نے کر لیا, تو پھر کیا کر لیا. آمین. لیکن آغاز بہت اچھا. آپ کی ماما کے پاپا نے اور آپ کی ماما نے کبھی بھی اسے یہ نہیں کہا ہوگا کہ بیٹا ایسا کر لے, وہ بھی روکتے ہوں گے. لیکن یہ دنیا کا دستور ہے, اور حالانکہ بہت گندا دستور ہے, برا دستور ہے. یہ بڑا ایک غلط طریقہ کار ہے کہ دنیا زیادہ دنیا کی طرف جاتی ہے, لوگ زیادہ دنیا کی طرف مولڈ ہوتے ہیں. آمین. تو کیا ہے, آغاز بہت اچھا تھا. خدا نے زمین میں اچھا بیج بویا, اور زمین نے مانی. اور یہاں پر کیا لکھا ہے, اینڈ گاڈ سیڈ, لیٹ دا ارتھ برنگ فورتھ گراس. کیا کرے؟ گھاس اگائے. دا ہرب ییلڈنگ سیڈ, وہ بوٹیاں جو اپنے اندر بیج رکھتی ہیں. آمین. اینڈ دا فروٹ ٹری ییلڈ فروٹ آفٹر ہز کائنڈ. کائنڈ کسے کہتے ہیں یہ بھی بتائے گا کوئی نہ کوئی. قسم, کس قسم دا بندہ ہے یار تو, ساری زندگی لگ گئے ہیں تیرے پیچھے, اڈیاں رگڑ دیتی ہیں, پر تیرے دماغ نے کام وجہ کام کے نہیں کرنا, جان ہی نہیں دیتی گل تھلے, ہے نا. تو جانے نہیں دے گا تو اثر کیسے ہوگا؟ یہ بات سمجھ رہے ہیں کہ نہیں سمجھ رہے؟ آمین. کیا کہہ رہا ہے کہ پھلدار درخت, ہر پھلدار درخت جس کے اندر اس کے پھل کا بیج ہے, وہ اپنی جنس یعنی قسم. ہم کس کی قسم ہے؟ کس کی قسم ہے؟ خدا کی قسم. مائی گاڈ یار, 1 in a million.
लाखों में एक है वो। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਇਸ ਕਿਸਮ ਦਾ ਬੰਦਾ ਜੇ ਤੂੰ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਕਿਤੇ ਲੱਭ बैठा ना तो मैनू पकड़ ले। कितनियां वड्डियां वड्डियां गारंटियां, और हम भी ढूंढने पे लगे हो। खुदा भी तो ढूंढ रहा है अपनी किस्म को, वो अपनी नस्ल को ढूंढ रहा है जो आगाज में अच्छी जमीन में से पैदा की गई थी, अपनी नस्ल को ढूंढ रहा है। हाइब्रिडाइज हुई हवा, हवा एक जमीन थी, खेती थी जिसने मौका दिया। यहाँ पर क्या लिखा है? जमीन लेट, है ना, क्या करे? होने दे। क्या कहा है? मैं इसे पढ़ देता हूँ दोबारा, जो पढ़े लिखे बच्चे वो समझ लें। एंड गॉड सेड लेट द अर्थ, लेट द अर्थ क्या? अर्थ जमीन होने दे, और खुदा कहे और जमीन माने ना। तो अगर खुदा ना कहे, कोई तंजीम कहे, कोई पोर्ट्रेट वाला बंदा, पोर्ट्रेट कहते खुद बनाया हुआ, सेल्फ पोर्ट्रेटिंग, वो कवे तो कहता रहे, जमीन कहेगी मैं अपनी मर्जी करनी है। समझ रहे हो ना मेरी बात? समझ तो गए हो? कोई इस दुनिया में किसी औरत के बगैर औलाद पैदा करके दिखाए जरा, किसी खेती के बगैर औलाद पैदा करके दिखाए जरा। खुदा बड़ा रहीम है मेरे अजीजों, बड़ा प्यार करने वाला, इसीलिए उसने कहा ब्याह करना तुमने इज्जत की बात माना। उसे पता था कि मेरे बेटियां बेटे इसी तरीकेकार से दुनिया में आएंगे। आमीन। खुदा का बीज इसी तरह से आएगा। मैंने बताया औरत का इस जमीन पर बहुत बड़ा कैरेक्टर है, और अगर वो अपने कैरेक्टर को थामे रखती है, आमीन, तो खानदानों की इज्जतों को थामे रखती है। ये सही कह रहा हूं आप, ये सही कह रहा हूं। इसलिए हर कोई समझे कि मेरे पीछे कितने लोगों की जिंदगी मेरी जिंदगी पे डिपेंड करती है, मुझ पे डिपेंड करती है। आमीन। आपके ऊपर बहुत से लोग फख्र करके बैठे हुए हैं, घुमंड करके बैठे हुए हैं। मैं कहता हूं गरूर हैं आप अपने माँ बाप का, बहनों भाइयों का, चर्च का कह लें, खुदा का कह लें। और अगर कहीं आपने इसे इजी ले लिया तो सब कुछ क्या हो जाएगा? डिस्ट्रॉय हो जाएगा, तबाह हो जाएगा। आमीन। साथ रहेंगे तो बरकत मिलेगी। तो क्या हुआ है यहाँ पर? वो कहता है जमीन होने दे। क्या करे? गॉड सेड, खुदा ने कहा लेट द अर्थ ब्रिंग फोर्थ ग्रास, जमीन क्या करे? घास को उगाए। The herb yielding seed, बूटियां जो अपना बीज रखती हैं, and the fruit tree yielding fruit after his kind, अपनी नस्ल के मुताबिक जो फलदार दरख्त है फल दें। और औलाद क्या है? पेट का। और आप कभी भी इस पर बहुत से बड़े बड़े महाज खुले हैं। मैं कहता हूँ पैदाइश हमेशा जायज ही काबिल कबूल। इस पे बहुत से महाजों में मैं गुजरा हूँ और मैंने बहुत कुछ दुनिया से सुना, ये बहुत बड़ी गवाही है। लेकिन मैं आपको बताऊं सच, दुनिया का सबसे बड़ी हकीकत है, ये तुझे मीठी लगेगी लेकिन पेट तेरा क्या कर देगी? सच्चाई सुनने का दम रखे मेरे। अगर हम दुनिया में रहते हुए नाजायज पैदाइश को कबूल नहीं करते तो खुदा कैसे करेगा? खुदा के नजदीक जायज और नाजायज क्या है? रास्त और नारास्त। आमीन, हालेलुया। तो क्या है? उसने कहा जो अपनी किस्म रखता है। हम किसकी किस्म है? खुदा की। अगर हम खुदा की हैं और कहीं पर भटक चुके हैं तो नो प्रॉब्लम, आज भी आपके लिए मौका है बहनों भाइयों, आपके लिए मौका है। ये खुदा का कलाम हर वक्त आपको आवाज देता है। लिखा शहर को खुदा की आवाज क्या करती है? खुदा की आवाज शहर को पुकारती है। मैं कई बार कह चुका हूं, कोई लेफ्ट राइट का कोई दुनिया नहीं है, मकान नहीं है, है ना, ईंटों की बात नहीं हो रही। ये मेरे और आपकी, हम ही खुदा का क्या है? शहर है जो आसमान से यूहन्ना ने देखा दुल्हन की तरह सजा हुआ उतर रहा था। क्यों उतर रहा था सजा हुआ? क्या किसने उसकी उसे रेनोवेट किया, उसे खूबसूरत बनाया, उसको तैयार किया? खुदा ने किया। क्यों किया? आवाज सुनती थी। अगर किसी को आप तैयार करना चाहें और वो टाए और वो अपने बाल बनाने ही ना दे, कहेगा नहीं मैं ऐसे ही ठीक हूं। अगर आप किसी को बच्चे को उठाएं और वो कहे मैं नहीं जमीन पे गिरूंगा, है ना, तो क्या करेंगे आप? कितनी देर? अक थक जाएंगे आप। आमीन। याद रखिएगा पाक कलाम में लिखा है अगर गुनाहगार अपने गुनाह में मरे और तू उसे ना बताए तो मैं तुझसे पूछूंगा, तुझसे बात पुरस करूंगा। मेरे अजीजों बहनों भाइयों, ये आप सबके लिए कलाम है, आप सबके लिए है। अगर बीज खुदा का कलाम गवाही आपके पास है तो आपके पास ये जुम्बश करेगा। ये साया कहता है तेरा कलाम मेरे हड्डियों के अंदर आग की मानद है, अब मैं बर्दाश्त नहीं कर सकता। आप किस किस्म की खुदा की किस्म हो जो कहते हो हम खुदा की किस्म, और आपके अंदर आग ही नहीं लगी? आपने कभी किसी को खुदा का कलाम सुनाया ही नहीं। आमीन। इसका मतलब क्या? कुछ नहीं है आपके पास, है ही नहीं। पाक कलाम में लिखा है, यीशु मसीह कहते हैं अगर कोई कहे कि मैं तुझसे मोहब्बत रखता हूं, मेरे हुक्मों को ना माने तो वो क्या है? कितनी बुरी बात। पाक कलाम में लिखा है शैतान क्या है? झूठा है, बल्कि झूठों का क्या लिखा नहीं। तो क्या हम कैसे खुदा की किस्म? क्या किया हमने? क्या ये डांट डपट है? नहीं, ये डांट डपट नहीं, मेरे ये आवाज है खुदा मेरे लिए भी। आप दिस इज नॉट कोई पर्सनल नहीं है किसी के साथ, खुदा पर्सनल है आपके साथ। और मैं कहता हूं आप खुशनसीब हैं कि खुदा आपके साथ थोड़ा पर्सनल हो गया है। यहाँ पर तो कहते हैं पर्सनल ना हो, होता कहते हैं कि नहीं, पर खुदा को कैसे कहो? अगर खुदा को खुदा हम तेरे हैं, हमने तेरे नाम से ये किया वो किया वो किया, ये कैसी इतनी खतरनाक बात कहेगा यीशु मसीह? मेरी तो तुमसे बात की किसके हो भाई? हम जी असेंबलीज ऑफ गॉड हैं, हम जी पेंटिकॉस्टल्स हैं, हम जी ये हैं, हम जी वो हैं, हम जी ये हैं, हम कैथलिक हैं, हम जी सबसे पहली कलीसियां हैं। क्या बनेगा हमारा? क्या बने? तो इसका जवाब है कुछ भी नहीं बनेगा। जब खुदा कुछ कह देता है तो उस पर दूसरी बात नहीं हो, ऐसा है कि नहीं? क्योंकि वो खुदा है भाई, आम शख्स नहीं है जिसको आप टाल मटोल कर दोगे। हालेलुया। साथ रहेंगे तो बरकत मिलेगी। क्या कहता है? उसने कहा वैसा ही किया जमीन। जमीन ताबे थी खुदा। हालेलुया। जमीन ने हर तरह की जड़ी बूटी, आगे चल के पढ़े
पढ़ेंगे तो लिखा है खुदा ने जमीन पर जड़ी बूटियां जो जानवरों के खाने के लिए हैं वो भी उगाई। जानवरों के खाने के लिए। मुझे बताइए सांप क्या छुपाया था? जान रैप्टल नहीं। तंबाकू किसे कहते? खाने की चीज। इंसान तो पी रहा है उसे। किसके लिए? ये भूल गए। मैंने बताया हरी जड़ी बूटियां जो हैं जो खुदा ने खाने के लिए नहीं रखी उसे इंसान इस्तेमाल कर रहा। का मतलब क्या है? ये तो जानवरों की चीज है। बताएं मुझे। बड़े बड़े खेत लगे हैं बड़ी दुनिया में। ये भंग क्या है? भंग तो पता होगा दुनिया में। अरे पाकिस्तानियों तो बहुत पता है। भंग से बहुत कुछ बनता है। एक नशीली चीज है। ऐसा है कि नहीं? तंबाकू क्या है? नशीली चीज है कि नहीं? गैर कौमों में ये गुनाह नहीं गिना जाता, इसे मुजरे सेहत गिना जाता है। हमारे यहाँ पर क्या है? नशाबाज खुदा की बाशी में दाखिल नहीं होंगे। अगर ये आपका एडिक्टेड हो गए हैं तो आपका हालात खराब है भाई। ये सच्ची बात कह रहा हूं मैं। आप अपने नशे पे ओवरकम नहीं हो सके, गालिब नहीं आ सके। आप खुदा के कहे हुए हुक्मों पे क्या गालिब आए? आपसे अगर दुनिया तबाह हो रही है और आप उस पर गालिब नहीं आ रहे अपनी उस हरकत पे, आप क्या करेंगे किसी पे गलबा? भाई बार बार कहता हूं ये खुदा की आवाज है, बार बार कहता हूं, सच्ची बात कह रहा हूं। ये कलाम की तफसीर है। क्या खुदा ने लिखा नहीं पाक कलाम में कि नशाबाज खुदा की बाशी में दाखिल नहीं होंगे? हाथ खड़ा कीजिए, बताइए मुझे, लिखा है कि नहीं? लोग कहते हैं चाय नशा है। मैं नहीं मानता इस बात। चाय नशा नहीं है। वो जी निकोटीन है। कौन सी निकोटीन? क्या नशा करने वाली? क्या सिगरेट में भर के पीने वाली? नो। ओ भाई, निकोटीन जो मार देती है बंदे को तंबाकू है, चर्स है, नस्वार है ना, भंग है और बहुत सी चीजें और जो दुनिया ने बना रखी हैं जड़ी बूटियों से। मुझे बताइए ये खशखा, मैं थोड़ा सा आगे पीछे निकल गया हूं, थोड़ी तफसीर बयान कर रहा हूं। एक होता है बीच में स्पेस आता है जो आपको समझने के लिए होता है। ये जो पॉपी फ्लावर्स होते हैं, अगर मैं गलत नहीं तो खशखास के फूल या खशखास, इसमें से क्या निकलती है? फीम। अगर आप पढ़े लिखे हैं तो फिर आपने ये चैप्टर जरूर पढ़ा होगा कहीं ना कहीं, नहीं तो आज पढ़ लीजिएगा। बात मेरी समझ रहे हैं कि नहीं समझ रहे? इसकी किसी चीज को इस्तेमाल करके लोग बहुत कुछ कर रहे हैं। हम खुदा का बीज हैं, हम खुदा की नस्ल। इसका मतलब क्या? खुदा की नस्ल, खुदा की किस्म। शेर क्या पैदा करेगा? फिर बताता हूँ, बार बार क्या? अपनी किस्म पैदा करेगा। कुत्ता किसकी किस्म पैदा करेगा? सांप किसकी किस्म पैदा करेगा? और भाई द वे, सांप के क्या कान होते हैं? नहीं होते। यहाँ पर क्या लिखा है वो सुने, है ना? सुने। हमारे तो हैं। कौन से कान? खतना शुदा मखसूस कान। आमीन। कहीं ना कहीं बुराई सुन ले तो कहते हैं तोबा तोबा तोबा, खुदा माफ कर, मेरे कानों से दूर रखे ऐसी चीजों को। अब भाई चुप कर, मेरे को सुनी नहीं हो जाती। कहने हैं कि नहीं? समझ रहे हो ना? गॉड ब्लेस यू, गॉड ब्लेस यू। हालेलुया, हालेलुया। खुदा उनका नाम, खुदा, प्रेज लॉर्ड। तो यहाँ पर मेरे अजीजों, उसने बीज की आगाज की बात कर रहा हूँ। आगाज में बीज जब खुदा ने कहा तो खुदा का कलाम था, कहता उगाए। खुदा ने फाड़ के कुछ हटा थोड़ी मारे। तो समझ ये आती है कि खुदा के लफ्ज मुंह से निकले हुए वो क्या है? खुदा का बीज है। उसका कलाम ही उसका क्या है? बीज है। मुझे बताइए यसुन मसीह कहां से आए? खुदा ने बोला। किसको बोला? फरिश्ते साथ। मरियम को भी समझ ले, खुदा नहीं बोला। कलाम खुदा का था तो खुदा नहीं बोला। अगर आप, मैं यहाँ पर इनडायरेक्टली आपसे बात कर रहा हूँ, या कोई खुदा का मुबल्लिग या नबी या चरवाहा खुदा का कलाम सुनाता है तो वो खुदा ही बोल रहा होता है। बंदे की बात नहीं होती। आप सही थे, बिल्कुल ठीक, खुदा ने बोला। लेकिन मैं चाहता हूँ आप तरतीब से आए, जरा अच्छा लगे। हालेलुया। खुदा ने फरिश्ते से बोला है। और मैं क्यों कह रहा हूँ? खुदा हमेशा डायरेक्ट आपसे बात नहीं करता। उसके लिए क्या करता है? अपने टाइम के एंजल को, आपका टाइम एंजल जो होता है, वक्त का फरिश्ता, उसको भेजता है भाई। और इसमें रेवलेशन है बहुत बड़ा। अगर पकड़ लेंगे तो बचे रहेंगे। अगर आप ये बात करेंगे कि आप हर जमाने में खुदा ने फरिश्ता भेजा, दुनिया आपको बिदती कहेगी। ये पक्की लिख के ले लो मुझसे। वे किधर दी गल्ला करते, पुठिया पुठिया गल्ला भाई, जिसे तक कलाम करे करो। हमसे कहा है लोगों ने। लेकिन यसुन मसीह इतना दलेर शख्स था, है ना? उसको बिदती कहा, बालजबूल का, है ना, रिश्तेदार कहा, कह लो कि उसकी मदद से बदरूहों को निकाले, शैतान का कुछ कहा, बहुत कुछ कहा। और फाइनली जब बिल्कुल ही उस पर मुसीबत आ गई तो उसके मुंह पर इतना रद्द किया गया, थूक दिया गया। थूका। वो कौन था? खुदा की किस्म था। खुदा की किस्म था। सारे हालात में से गुजरा मेरे अजीजों, सारे हालात को फेस किया उसने। वो डरा नहीं, टूटा नहीं। हालेलुया। साथ रहेंगे तो बरकत मिलेगी। आप जिसको मॉडल मानते हो, आप जिसकी वजह से मसीही हो, क्रिश्चियन हो, आपने कभी उसकी जिंदगी पर गौर किया? कभी टूटा वो? खुदा छोड़कर साइड पे हो गया, टूटा नहीं वो। किसकी किस्म था? यहूदा का शेर बब्बर था, शेर की किस्म था वो। हालेलुया, हालेलुया। और मेरे अजीजों, दुनिया ने उसे खत्म करना चाहा। दुनिया ने सब कुछ कर लिया उस पर, कुछ नहीं छोड़ा, है ना? और दबा दिया। का मतलब क्या है? उसे एक दफन कर दिया। का मतलब क्या है? दफन करने का मतलब क्या है? बो दिया उसे जमीन, बीज दिता। कुछ साढ़े ना बहुत सीधे साधे भी लोग ने, बोने का मतलब है बीज देना, है ना? मैंने पता 5वीं तक तो बहुत ही लोग पढ़े ने। हुण केड़ी जमाने जा रहे हो? 2026 चल रहा है। 5वीं जो कुछ लोग यहाँ छड़े हुए लोग, 5वीं से छोड़ा, 4थी से छोड़ा, पर बाइबल का कुछ लफ्ज तो पता ही याद होएगा, पढ़ना नहीं आता तो फिर की हो गया है? भाई बोलो तुसी, असी समझांगे। मैं कहना खुदा दा शुक्र इंज भी तुसी होवो थे।
बोना मतलब बीजना। खुदा का कलाम, खुदा ने अपने मुंह से कहा वक्त के फरिश्ते को, और फरिश्ता ड्यूटी दे रहा है किसके पास आकर? वक्त की दुल्हन के पास। वो कौन थी? पाकीज़ा, है ना? लोग उसे बहुत कुछ कहते हैं और कहना चाहिए। बतूला, सैयदा, सभी कह लें अच्छे नाम है ये, इनका मतलब बहुत अच्छा है। बेहतरीन औरत, आमीन। बिल्कुल वही जमीन जो खुदा आगाज में कह रहे जमीन बोए, उसने कहा तेरे ऐसा होगा, कहती है कैसे होगा? क्यों कहा उसने कैसे? आदम से गिरी हुई नस्ल में से वो भी आई थी ना सारे, इनफेक्टर तो थी। सवाल तो पैदा होता था होगा कैसे? तूने तो आदम के साथ हवा को बनाया, मेरे साथ कौन सा आदम है? उसने कहा मैं हूं ना आदम तेरा। मरियम को गौर से सुने, बहुत सी चीजें जो लिखी नहीं होती लेकिन पकड़ने वाली होती हैं। खुदा के कहने का क्या मतलब था? टेंशन ना ले, अगर ओदा आदम सी ना तो तू कह रही है किंज होएगा, मेरा आदम किथे है ना? तो मैं तुझे बताता हूं तेरा आदम दुनिया से है ही नहीं। तेरा आदम आदम को पैदा करने वाला और उसकी नस्ल को पैदा करने वाला है, और तेरे पास भी औलाद को पैदा करने वाला कौन है? तेरा आदम। और वो आदम कौन है? उसने कहा, खुदा ने कहा मैं हूं। कैसे कहा? गॉड ब्लेस यू। कैसे कहा? लोग कहेंगे भाई फजूल बात। कुछ लोग क्या करते हैं, क्लिप निकालते हैं, काटते हैं, कितना पुट्ठा सिखा रहा है जी लोगों को। लोगों की ड्यूटी है। एक भाई ने चैनल खोले आया तो उन्हें क्या जी मेरी ड्यूटी है लोगों की गल फड़नी, उन्हें जलील करना, लोगों ने सुनाना है। ओ जी भाई जी साडा काम ही है, उसने ये पकड़ लेना। खुदा ने कहा मैं तेरा आदम हूं। भाई जी किथे लिखे है? बड़े सियाने हो तुसी, लिखे चल जाओ तुसी। लिखा है अभी तो वादा पे ना अगे। क्या खुदा ने पैदाइश की किताब का पहला चैप्टर लिखा तो दूसरा नहीं लिखा? जब दूसरा लिखा तो तीसरा नहीं लिखा? लिखा। जब खुदा ने मत्ती की इंजील के 28वें बाब में कहा जाओ बाप और बेटे अलकुदस के नाम में बपतिस्मा दो, तो क्या उत्थे ही बैठा रहा? इमाल की किताब लिखी के नहीं लिखी? वहां पर क्या लिखा? आगे बढ़ो। क्या लिखा है? रेवलेशन आगे बढ़ाता है। पतरस को जिसको कहा वो आगे बढ़ा। कैसे बढ़ा? रूह ने बढ़ाया और उसने कहा क्या ये, और उसने यशायाह 6:9 की तरफ उसका ध्यान दिलवा। उसने कहा ना जो बातें कही गई नहीं ध्यान दिलवाएगा। जब रूह आएगा तो क्या करेगा? वो बातें जो मैंने कही हो यस्सु तू ते है नहीं सी क्या, तू ते बाप बेटा क्या सी? उन्हें क्या तू मैनू पकड़े ही है तो मैं तो यशायाह तो तुहाडे नाल हां। मैं ही कह रहा था खुदा तुमको एक निशान बख्शेगा। देखो एक कुंवारी हामला होगी और उसका नाम अजीब मशीर खुदा कादर अब्दियत का बाप और सलामती का बाप बेटा और रूह कुद्दस होगा। वो मैं था जो कह रहा था। हालेलुया, प्रेज बी द नेम ऑफ लॉर्ड जीसस क्राइस्ट। खुदा के नाम को जलाल मिले। हम यस्सु को सिर्फ अंजीलों में ढूंढ रहे हैं, जहां पे यस्सु पैदा हुआ वहां पे ढूंढ रहे हैं, जबकि वो कह रहा है खुदावंद मुझे उसी तरह जलाली कर दे जैसे मैं अज़ल से तेरे साथ जला। वो शुरू ही से था, उसका ना कोई आगाज था और ना ही कभी कोई इख्तिताम होगा। वो अज़ल से था और अब तक रहेगा, और इसीलिए वो अब्दियत का क्या है? बाप है। मेरे अजीजों, अगर यस्सु अब्दी है तो उसकी किस्म भी अब्दी है। अगर यस्सु अब्दी है तो उसका बीज भी अब्दी है। अगर यस्सु अब्दी है तो अब्दी कलीसिया के ऊपर सल्तनत कर रहा है, वो उसका बादशाह है। उसने कहा था जब लोगों ने पूछा कि तेरी बादशाही कब होगी, आमीन, उसने कहा मेरी बादशाही तुम्हारे दरमियान है भाई, जरा फील करो। और फिर मुकाशवा में कहता है वो 7 कलीसिया जमानों में बादशाही कर रहा है ना भाई। चल फिर रहेगा मतलब क्या? वो देख रहा है, वो दूल्हा है, वो दुल्हन को समझा रहा है, उसको तैयार कर रहा है। आमीन। मेरे अजीज, अब कोई यामी चाहने वाले लोग नहीं है, कॉमन लोग नहीं है, स्पेशल वन। जितनी जल्दी इन बातों को समझ जाएंगे उतना आपका भला हो। दुनिया तबाही के दाने पर है ना? सलाब सर पर खड़ा है और हम सोए हुए खाबे खरगोश की तरह। जंग हमारे सर पर मुसल्लत हुई है, दुनिया तबाही में गिरी है। दुनिया के बड़े बड़े साइंसदान जो मुल्क हैं वो तबाह होने के दाने पे हैं। तबाही सर पे खड़ी है और हम दुआ भी नहीं, हमें तो पता ही नहीं, हम खाबे खरगोश में सोए हुए हैं। और शाम के टाइम पे हमारी सुबह होती है। माफी के साथ ये बात कर रहा हूं, किस तरह के लोग हैं। और फिर हम चर्च में कहते हैं हम खुदा की कसम। कितने झूठे हैं पास्टर, क्योंकि किसी का रिश्तेदार नहीं हो, इसलिए पास्टर के लिए सारा कुछ बर्दाश्त के काबिल होता है। आमीन। वो सब कुछ बर्दाश्त कर लेता है। लेकिन मैं बताऊं आपको, ये जो आपको एग्रेशन देता है किसी भी बहन या भाई को, ये इब्लीस बैठा हुआ है आपके साथ। मैं आपको अभी बता दूं, अगर नहीं होगा तो आपको पता, इसे लेट डाउन करें, इसे गिराएं नीचे, पीछे छोड़ें इसे। आमीन। करके देखिएगा कभी जिंदगी में। आमीन। कभी करके देखेंगे तो जीते हुए नजर आएंगे आप। यस्सु कभी हारा हुआ नहीं था। लोग समझते थे हार गया, मर गया, खत्म हो गया, डूब गया सूरज इसका, लेकिन जब उठा मेरे अजीजों उसको बोया गया। खुदा ने बोने दिया, उसको बोया गया, और जब बोया गया तो पड़ा नहीं रहा। वो पड़ा नहीं रहा वहां पे, क्योंकि उस बीज के अंदर अब्दियत थी, उस बीज के अंदर जिंदगी थी। किसकी? किसी इंसान की? नेवर एवर। किसकी? ओ मेरे खुदा, वो खुदा की जिंदगी उसमें थी। तो हम में किसकी जिंदगी है? क्या हमारे मुतल्लिक ये होना कि पहले बाप में कुछ लाइनें लिखी हैं? क्या हमारे मुतल्लिक लिखा है वो ना इंसान के इरादे से, ना इंसान की ख्वाहिश से, बल्कि स्कूल में जब डंडे पड़ते थे हमें, है ना, तो घर में आके कमरा बंद करके सबसे पहले वही काम करते थे, अगले दिन फिर पहने। इसका मतलब समझ गए ना?
फजल में रह के क्या हम डंडों से बच गए? हमें लगा शरीयत में जलालत है ना, शरीयत में बहुत बुरा किया जाता था, सजा थी। भाई अब भी है, पर अब एक टाइम मुकर्रर है, तैयार रहो, छड़ना नहीं उन्हें। बात समझ रहे हैं? क्या है यूहन्ना के पहले बाब में लिखा है, जितनों ने उसे कबूल किया। और फिर क्या था वो, क्यों किया? क्योंकि किस्म ही किस्म को कबूल करती है। आमीन। मुझे बड़ी अच्छी तरह याद है, आपका टाइम थोड़ा सा लगेगा, मैं जब स्कूल में था तो मुझे 6वीं 7वीं की बात है शायद, अगर मैं गलत नहीं तो तब उस जमाने में 3 महीने की या 1.5-2 महीने की छुट्टियां हुआ करती होती थी, आपको भी होती होंगी। तो मैं चला गया गांव में, तो वहां पर मैं मुश्किल से 3 से अब मेरा ख्याल से 5-6 दिन ही निकाले थे, मुश्किल से, मुझे पता है। और मेरा घर की तरफ दिल है ना, हालांकि खासा बड़ा था मैं, और उस जमाने में तो बड़े बड़े लड़के 6वीं 7वीं में पढ़ते थे। अब जहां पर गया था वो कहते हैं परेशान क्यों बैठे, जैसे उन्होंने पूछा परेशान क्यों बैठे, तो मैं क्या, और ये सच बता रहा हूँ खुदा के मज़हब। उधर से क्या हुआ कि हमारे अब्बू जी, अच्छा उन्होंने क्या किया कि बच्चा 13 लाख पे अनुवाद जी भाई जी छोड़ के आओ। अकेला तो सफर किया नहीं था कभी। उधर से वो थे यार, इधर से हमें पता नहीं, हमारे पापा जी थे यार, उधर से वो उधर पहुंच, इधर से वो उधर पहुंच गए, और उधर से हम इधर पहुंच गए। इसका मतलब जरा दसो मैनू सादा, क्या मतलब है? जो जिसकी किस्म होता है उसे ढूंढता फिरता है, उसके बगैर उसका दिल नहीं लगता। ये है बात भाई, ये है बात, ये है बात। और अगर आपका लग रहा है ना दिल, तो माफी के साथ आप किसी एंगल से खुदा की किस्म नहीं है, और इस धोखे से निकल आए जितनी जल्दी निकल सकते हैं। आप बोले नहीं हूं भाई मैं, इसमें क्या है? आप बोल दे कोशिश कर रहा हूं भाई, इसमें क्या है? झूठ मत बोलें खुदा के साथ, झूठों को लिखा, सब झूठों का क्या है? आग की जलती हुई जेल में हिस्सा है। हर एक झूठी बात का कहने वाला, सुनाने वाला, और उसका गढ़ने वाला, और उस पर आमीन करने वाला, उसे मानने वाला, सब क्या है? आग की जलती हुई जेल में जाएंगे। क्यों अपना बेड़ा गर्क कर रहे हो यार? आप सच बोले नहीं है। वो मैं एक बच्चे को मैंने कहा यार बपतिस्मे हो रहे हैं, वो कहता है जी लांगे। हाँ मैं उधर वेट कर रहा, मैंने कहा किधर गया बच्चा? हम ढूंढ रहे हैं, बच्चा नहीं आया, सबसे पूछ रहे नहीं आया। अगले दिन बोला जी भाई जी मैं तैयार नहीं है। मैं क्या, वेरी गुड, सच बोला तुमने। क्यों जी? क्या खुदा नहीं कहता ये सर्द हो जाए गर्म हो जाए? तो रहो ना सर्द, नो प्रॉब्लम, खुदा को कोई प्रॉब्लम नहीं। जो खुदा का बीज है वो वापस आएगा। खुदा का बीज उधर से चलेगा, वो रोएगा उसके लिए, खुदा का बीज, और उधर से खुदा रोएगा उसके लिए, ट्रैवल करेगा। और क्या खुदा ने ट्रैवल नहीं किया? यीशु मसीह की सूरत में उसने कहा इब्ने आदम खोए हुओं को ढूंढने जो पापा से जुदा हैं और नजात देने आया। मेरे अजीजों, आप खुदा का बीज हैं, खुदा की किस्म है। द काइंड ऑफ गॉड ही खुदा का क्या है? द सीड ऑफ गॉड है, खुदा का बीज है मेरे। अगर आप खुदा का बीज हैं, आज इस मज़बा से खुदा आपको पुकार रहे हैं। आमीन। आप खुदा का बीज, हालेलुया। अगर यीशु मसीह खुदा का बीज है और उसका बाब रूल कुछ लिखा है, तू फिक्र ना कर मरियम, खुदा का रूह तुझ पर साया करेगा। किसने कहा? फरिश्ता ने। आज की मरियम मैं और आप हैं। सच मान लो इस बात को जितनी जल्दी मान सकते। और हमारे जमाने का फरिश्ता आ चुका हुआ है। हमें उस फरिश्ते की बॉडी से कुछ नहीं लेना देना, उसकी चमड़ी से कुछ नहीं लेना। चिट्टा सी, काला सी, नीला सी, पीला सी, गोरा सी, है ना, अंग्रेजी बोलता ही, अंग्रेजी नहीं सी बोलता, इतना कोई फर्क नहीं पैंदा। क्या इब्रानी हमारी मादरी जुबान है? बताइए बच्चों। नहीं। ग्रीक, यूनानी हमारी मादरी जुबान है? नहीं। मैं तो ये कहूंगा कि हमारी जनरेशन को छोड़ करके पीछे चले जाएं तो हमारी मादरी जुबान तो उर्दू भी नहीं थी। हमारे बच्चों की कह सकते हैं थोड़ी बहुत, क्योंकि हमने उर्दू सिखाई है उनको। ऐसा है कि नहीं? तो भाई हमारी माँ बोली तो इब्रानी नहीं थी, फिर इब्रानी की बाइबल को उठा के किधर घूम रही है दुनिया? क्यों इब्रानी के चैप्टर सीख रही है? क्यों कॉलेज खुले हैं पाकिस्तान में इब्रानी के? क्योंकि इब्रानी में कुछ सच लिखा है। इब्रानी ही जड़ है, उसको पकड़ लो। क्यों अंग्रेजी की बाइबल में जाते? क्योंकि अंग्रेजी में कुछ सही लिखा है भाई। उर्दू में कुछ बातें ऊपर नीचे कर दी गई हैं, क्योंकि उर्दू की बाइबल को ट्रांसलेट करने वालों ने कुछ ना कुछ 19-20 की है। इसलिए जरूरत पड़ी कि हम सच की तरफ जाएं। कौन जाएगा सच की तरफ? वो जो सच्चाई से पैदा हुआ है। घूम घूम कर बात मेरे अजीजों वहीं पर आ रही है। अगर आप खुदा से हैं तो खुदा की तरफ क्यों नहीं? अगर आप खुदा का बीज हो, उसकी किस्म है, तो खुदा की तरफ क्यों नहीं? टाइम तो लगेगा, लेकिन ये टाइम आपको जिंदगी दे जाएगा। ये मैं आपको बता रहा हूँ। क्या ख्याल? पाकला में क्या लिखा? क्या बदन, पोशाक बदन से बढ़कर है? बताइए जरा। तो क्या गीत गाना कलाम सुनने से बढ़कर है? नहीं। कलाम मनने नहीं तो गीत गाए जाने ने। एक गालो, दो गालो, नो प्रॉब्लम, घर जाके अलग महफिल रख लेंगे, कोई मसला नहीं, ये तो गाए ही जाएंगे। लेकिन इसका क्या? खुदा अगर बोल रहा है और वो चला गया टाइम, तो फिर कुछ नहीं हासिल। समझ आई मेरी बात? खुदा को बरकत दे। तो क्या है खुदा की किस्म? क्या खुदा की किस्म है? मैं थोड़ा सा आपको बताता चलूं, फिर दोहरा देता हूं। और इसको बात को समझ लीजिए कि जिन बच्चों को नहीं पता वो
समझ लें इस बात को, हम खुदा का बीज हैं, आमीन, और बीज खुदा का कलाम है। यस्सु खुदा का बीज था और है, आमीन। उसकी ट्रांसफॉर्मेशन देखिए, पैदा हुआ बच्चे के रूप में, लेकिन जब पैदा हुआ दुनिया को फिर नजर आया, लेकिन वो मौजूद पहले से था। हम जब पैदा हुए जमीन पर खुदा का बीज, आमीन, हम नजर जमीन पर आए लेकिन मौजूद हम, लिखा है जो इब्तिदा में था, क्या था? इब्तिदा में क्या था? कलाम था, आमीन। जब अब्राहम को खुदा ने बुलाया तो हम अब्राहम के अंदर थे। अब्राहम से पहले जब खुदा ने आदम को पैदा किया तो मैं और आप, मेरे अजीजों प्यारे बच्चों, हम सब आदम के अंदर थे। हम किस नस्ल से आए? क्या काइन की? काइन तो आदम का था ही नहीं, उसका था। कहां पर लिखा है जरा बता दीजिएगा? बेफाम निकालिए उसका भाई। मुझे जाना पड़ता है इन बातों की तरफ। और क्यों? क्योंकि आप हैं बच्चे खुदा के, मैं भी हूं, और चाहता हूं कि जो कुछ मेरे पास है आपके पास आए। कहीं पर आप फंस जाए, कहीं पर आपको अपनी शरीर की किस्म रोक ले, जो कि सिस्टमैटिक किस्म है, जो बड़ी होशियार और ताक है, तेज है, आमीन। अगर रोक ले तो कम से कम बचाव का कुछ ना कुछ तो आपके पास हो, आमीन। आप किसके बेफाम में हैं? आप सेत के बेफाम में, जो खुदा की आदम से सही नस्ल है, उसके बेफाम से है मेरे अजीजों। और उसी के बेफाम से चलते चलते मेरा और आपका यस्सु आ रहा है, आमीन। जैसे यीशु मसीह माफूकुल फितरत तरीके से पैदा हुआ, वो पैदा होने पर लोगों को नजर आया, लेकिन मौजूद वो अज़ल से था। क्या पौलुस ने नहीं कहा? जिनको उसने, खुदा ने, मतलब जिनको उसने पहले से जाना, उनको बुलाया भी, और जिनको बुलाया उनको कायम किया और मुकर्रर भी किया। वो खुदा के बरगज़ीदा। ये कौन है जिनको पहले से जाना? क्या कहता था पौलुस 13वें बाब की, पहला करंथियों 13वां बाब, कहता है, लेकिन उस वक्त उस तौर से जाना जाऊंगा जिस तरह मैं जाना गया। किस तरह से? क्या यसाया ने नहीं कहा? क्या नबियों ने नहीं कहा कि तू मेरी मां के पेट से ही मुझे क्या है, मसा कर चुका है, मुझे जानता है? ये क्या बात? खुदा पैदा होने से पहले फैसले करता है? जी भाई करता है। ईसाऊ और याकूब की पैदाइश के लिए समझते हैं आप? हालांकि पैदा भी नहीं हुए थे, खुदा ने कहा छोटा बड़ा छोटे की क्या करेगा? हम क्या है, बड़े या छोटे? ये बात समझ रहे ना? किससे बड़े हैं और किससे छोटे हैं? इजराइल क्या है दुनिया की नजर में? बोलते जाए बड़ा है। क्यों बड़ा है? क्योंकि बदन में वो पहले जमीन पर है, आमीन। और हम क्या है? बाद में आए हैं गैर कौमों से, और हम क्या हो गए? लेकिन छोटे सबसे पहले थे, छोटे सबसे पहले थे। क्यों? ब्राइड खुदा के नजदीक खुदा का बुनियादी काम क्या था? खुदा का बुनियादी काम क्या था? क्या एक कौम पैदा करना? नो, एक दुल्हन पैदा करना। क्या कौम से खुदा शादी करना चाहता था? नो, खुदा दुल्हन लेकर जाना चाहता था, आमीन। उस कौम को खुदा ने क्या दिए? बर्रे बछड़े, है ना, कुमरियों के जोड़े, कबूतरों के जोड़े, है ना, दिए के नहीं? खून के नीचे तो वो कौम भी थी, आमीन। लेकिन हमारे लिए कुछ स्पेशल वन था। कौन सा? बर्रा का खून, बर्रा का खून हमारे लिए भी है। और हमारे लिए जो खून है मेरे अजीजों, वो गुनाहों को ढांपता नहीं है, बल्कि क्या कर देता है? धो देता है। जी में चढ़ दे तो है लैंदा। क्या है बोला? जी में चढ़ दे तो है लैंदा, ओनी दूर ही साडे पाप खुदा ने चुक के सारे। अब कोई नहीं लाएगा आपके अलावा, वापस कोई नहीं लाएगा आपके अलावा। अगर कोई लाएगा तो वो आप ही लाएंगे, क्योंकि खुदा ने फेंका है। वो सरिश्ता आप ला सकते हैं वापस। खुदा का बीज, खुदा का तुखम भी है। मैं हवाले नहीं पढ़ाऊंगा, मेरे पास काफी है। अगर कोई इंटरेस्ट रखता है तो बाद में हवाले ले सकते हैं, आमीन। हालेलुया। यीशु मसीह बोया गया। यीशु मसीह बोया गया। कैसे? मर गया, दफन हो गया। दफन होने का मतलब बोया गया। जब बोया जाता है कोई चीज तो नीचे अंधेरा होता है, नीचे जमीन की सारी गलाजत होती है कि नहीं? और वहां पर कुछ टाइम के लिए वो बीज क्या होता है? सड़ता है, गलता है ना? दुनिया को लगता है अब गया बस, आमीन। लेकिन अगर वो खुदा की किस्म है तो वो उठता है। और सबसे पहले उठने वालों में कौन था? खुदा खुद था, यीशु मसीह था। यीशु मसीह उठा, और यीशु मसीह उठा जब, तो ऐसे नहीं उठा। मैंने पहले ही बताया था, यीशु बेफल नहीं था। यीशु एक ऐसा बीज था जो फल लेकर आया। यीशु अपने साथ बहुत से लोगों को जो ईमानदार थे, है ना, नस्ल आदम की असली नस्ल, खुदा की नस्ल, खुदा आदम खुदा से था, है ना, तो उनको भी साथ में लेकर उनको पड़ा नहीं रहने दिया। अगर आप खुदा की नस्ल हैं तो यीशु आपको भी नहीं रहने देगा। अगर पाजी की कर दो वाकई है मां, वेरी गुड। इतना बड़ा डिटरमिन, इतना बड़ा आज़म, मुझे खुशी हुई है। खुदा आपको रखे ऐसा। लेकिन याद रखें, नजर वही आएगा जो बाहर है, और बाहर से आपको दुनिया जज करेगी। और खुदा भी बाहर से इसलिए कहता है तुम्हारे कामों को देखकर, आमीन। चिराग जलाकर कोई पलंग के नीचे नहीं रखता, बल्कि अगर आप खुदा के चिराग हैं तो फिर तपश,
साथ वाले को होनी चाहिए, पोर्ट्रेट चिराग नहीं होने चाहिए। आमीन। यीशु मसीह खुदा का बोया हुआ बीज था, खुदा के मुताबिक बोया हुआ, खुदा का कलाम था और फल लाने वाला कलाम था। खुदा का कलाम जिंदा बीज है, सबसे बड़ी बात, खुदा का कलाम। और जब ये बोया जाता है जिंदगियों के अंदर तो मुर्दा बीज यानी इंसान, आमीन, जिंदा हो जाते हैं, जिंदा हो जाते हैं। अगर जिंदगी का कलाम, हकीकी जिंदगी का कलाम, इंफॉर्मेशन का, डिसर्नमेंट जिसे परख का रूह कहते हैं, आमीन, समझ बूझ के साथ रेवलेशन का कलाम आपके पास है तो आप मुर्दा नहीं है, आमीन। फिर मुर्दा काम मत करें। मुर्दा काम समझते हो ना, काम भी मुर्दा होते हैं जी, वही तो मुर्दा करते हैं आपको। अगर काम जिंदगी वाले हों तो फिर आप मुर्दा कभी नहीं कहला सकते, आमीन। मेरे चीजों सिम्बलाइजेशन है, पैराबल्स हैं, तमसीलें, है ना, बहुत सी तमसीलें हैं जिनके तमसीलों के जरिए खुदा ने बात की। हमने कड़वे दाने की बात समझी, आमीन। खुदा ने आगाज में अच्छा बीज बोया, जमीन अच्छी थी, वो जमीन लेकर आई उसी तरह का बीज, उसमें हाइब्रिडाइज नहीं किया, उसने कुछ भी नहीं किया, है ना, उसने सही क्यों हाइब्रिडाइज नहीं किया था। खुदा ने जब पहली बार जमीन बोई, सारा कुछ बोया, बेल बूटे हर चीज बोई, इब्लीस को गिराया, इब्लीस ने सत्यानाश मार दिया हर चीज का। अंग्रेजी में इसे कहते हैं हाइब्रिडाइज किया, और फिर आगे जाके इसको कहते हैं डिफॉर्म किया, है ना। इब्लीस ने डिफॉर्म कर दिया, डिफॉर्म समझते हो ना, बर्बाद कर दिया, है, लत मार के सारा रेत महल के गिरा दिया, है ना, बात समझ रहे हैं, एक तरफ से बिगाड़ दिया, इसको इधर उसको उधर कर दिया। खुदा ने देखा है बनाया तो मैंने सही था, ये क्या किया, उसने सारा मलिया मेट करके दोबारा बनाया। हमें जब खुदा बपतिस्मा देता है तो सारा एक बार मलिया मेट करता है पानी के अंदर और फिर दोबारा बनाता है, आमीन, दोबारा बनाया, हालेलुया। तो दोबारा खुदा को बनाना जरूरी था, आमीन। जो कोई नए सिरे से, इसका मतलब क्या है, दोबारा भाई दोबारा बपतिस्मा लिए जनाब, दोबारा पैदा हो जाओ। मैं बपतिस्मा नहीं कह रहा, बपतिस्मा पैदा होने की अलामत है, पैदा हो जाओ दोबारा। तुम बपतिस्मे आज फंसे हुए हो, इसमें नहीं फंसना। तो क्या है, खुदा ने जब पहली बार कहा तो जमीन अच्छी थी, सारा कुछ वैसे ही हुआ। मैंने बताया पहली बार जमीन को इब्लीस ने बर्बाद किया, ये पहली बार खुदा ने फॉर्म किया था जमीन को, और बाद में इब्लीस ने डिफॉर्म किया, बर्बाद किया, और खुदा ने उसे डिफॉर्म करके दोबारा रिफॉर्म किया, रिफॉर्म दोबारा बनाया, आमीन। दोबारा बनाना, जब दोबारा बनाया तब की ये बात है, ये तब की बात है, आमीन। जब जमीन वीरान और सुनसान हो गई थी तो उसके बाद खुदा ने दोबारा बनाया। ये बात को रख लें अपने पास, जोड़ है ये, इस बात को समझ लें। तो क्या हुआ, वहां पर खुदा ने जो कुछ कहा, जमीन बिल्कुल स्मूथ थी, नॉर्मल थी, साफ थी, सुथरी थी, हर चीज मानने वाली थी। जमीन ने बात मानी, हम भी खुदा की जमीन है, हमें भी खुदा की बात माननी है, आमीन। जमीन ने उस बीज को उगने दिया। आज हम खुदा का कलाम जो उसका रूह है उसको बुझा देते हैं, दबा देते हैं, नहीं दबाना, नहीं बुझाना, आमीन। और दबाए और बुझाएंगे नहीं तो ये जरूर जिंदगी लेकर आएगा, रोशनी लेकर आएगा, आमीन। उसके बाद हुआ क्या है, जमीन आगे बढ़ी और हाइब्रिडाइज हुई। इब्लीस ने इस पर बहुत कुछ किया, आमीन। वो जमीनें हम ही हैं, इंसान को गुनाह में डाला, हरामकारियों में डाला, बुरी ख्वाहिशों में डाला, और बहुत कुछ करता 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 उसके लिए जहन्नम के लिए पूरी तैयारी कर ली उसने, आमीन। अपनी बहुत सी फौज तैयार कर ली, और उसी के चलते में यीशु मसीह कहते हैं कि आसमान की बात चाहिए उस आदमी की मानद है जिसने खेत में क्या किया, अच्छा बीज बोया। खेत क्या है, खुदा का चर्च। अच्छा बीज क्या है, खुदा के लोग। बीज तो अच्छा था लेकिन सोया हुआ, पादरी भी सोया हुआ, आमीन। ख्याल ही नहीं किया, क्योंकि पादरी को भी अपना बचाव करना था। भाई ये कर दूंगा तो मैं चर्च तो बात होता है, ऐसा होता है। मैं कहता हूं टॉलरेट करना बहुत अच्छी बात है, लेकिन आपके लिए टॉलरेट करना, खैर थोड़ी जी लगी हाल, थोड़ी जी होर लग जाएगी, चल फिर बजावांगा। कभी ऐसा किया आपने? ਅੱਗ ਜਦੋਂ ਲੱਗੀ ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਫੌਰਨ ਸਤਿਆਨਾਸ਼ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਜਨਾਬ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਦਾ, ਤੁਸੀਂ ਫੌਰਨ ਉਹਦੇ ਤੇ ਪਾਣੀ ਪਾਉਂਦੇ ਹੋ, ਬਜਾਓ यार ਇਹਨੂੰ पहले। और जिसने लगाई होती है ਉਹਨੂੰ बहुत बुरा लगता है कि यार मैं तो साड़न दे चक्कर से आए, की हो गया। लगाते हैं कि नहीं लगाते हैं। तो क्या हुआ, जमीन में अच्छा बीज बोया था, बुरा कैसे आ गया? खुदा ने तो नहीं बोया था, तो फिर किसने बोया? इसका मतलब है वो भी बो रहा है, भी बो रहा, वो भी कलीसिया, वो भी कलीसिया, वो भी बीज, वो भी कलीसिया, वो भी चर्च, वो भी कलाम, वो भी सेमिनरी है ना, वो भी सारा कुछ चल रहा है। भाई इस चलते में आपने अपना बचाव कैसे करना है? बड़ा सख्त मुकाबला है, बड़ा सख्त मुकाबला, बार बार करना। इस मुकाबले जो जितना किन्ने में, खुदा की नस्ल ने, खुदा के बीज ने, खुदा की किस्म ने आप हैं, कहते हैं हाँ जी हैं, जीत के दिखाओ, फिर पता चलेगा। भागने वाले तो सभी होते हैं लेकिन जीत का सेरा कोई, पौलुस कहता है एक को ही मिलता है, वो एक खुदा की दुल्हन है, और दुल्हन का हिस्सा आप सब हैं, हो सकते हैं। हालेलुया, गॉड ब्लेस यू, गॉड ब्लेस यू। कहता है कर लें, पादरी साहब कहते फिर कट के बाहर मारने हैं, 2 मिनट चुप कहता। मेरी गल सुन लो भाई जी, किते ओदे नाल तुसी अपने चक्कर च पे हो ते माते चंगा बीज होवे, समझ आंडी गल दी आते गई होए। फसल का मतलब क्या है? अब बस हुण खुदा ने यीशु मसीह ने जान देती, हुण
सत्ता ही खैरा पुठियां छाला मारो, जो मर्जी करो, माफती होने जड़े हो गए एक बारी बपतिस्मा ले लिया। क्या कहा है पाक कलाम में लिखा है, तुम आजाद रहने के लिए आजाद किए गए हो, पर इस आजादी को गुनाह का लिबादा मत तोड़ना। इसका मतलब समझे कि अगर ये आयत है कि मत काटना, कहीं इसके साथ तुम अच्छे दाने भी ना उखाड़ दो। हम कौन से जमाने के लोग हैं? हम क्या 7 जमानों के लोग हैं? क्या हम 7 कलीसियाओं का हिस्सा है? नहीं, हम तो है ही नहीं। तो फिर इसका मतलब है ये बात किन के लिए है? उनके लिए जो अभी रास्ते में है। हम क्या रास्ते में है? नहीं, हम तो फाइनल पे पहुंच चुके हैं। हमें तो सच्चाई हमारी जेब के अंदर हमारे पास है। तो अब क्या होगा? अब भाई बुराई नहीं चलेगी। अब जो बुरा है उसको अपना आप संभालना पड़ेगा, नहीं तो हालात क्या हो जाएंगे? खराब हो जाएंगे। दुल्हन को इन्फेक्ट करेगा वो। और बाय द वे देखा जाए तो वो खुद भी दुल्हन का हिस्सा है। क्यों अपने आप को बर्बाद कर? आमीन। तो उसमें अच्छा बीज बोया और निकल गया 7 कड़वे दाने। और क्यों बोए? क्योंकि सारे सोए हुए थे। आमीन। सोना नहीं, जागते रहना। आमीन आमीन। जागेंगे तो फिर इब्लीस को मौका नहीं मिलेगा। और जागना क्या है? वो कलाम जो दिया गया है उसे सच्चे दिल से दिल में रखें। मैं आपको बताता हूं बोने वाले कितने हैं। बहुत से बोने वाले हैं। दुश्मन कौन है? दुश्मन कौन है? जो रेवलेशन से बाहर है वो दुश्मन है। मैं सच कह रहा हूं आपको, जो रेवलेशन से बाहर है। परसों मैं एक भाई है, उनका मैं नाम नहीं लेना चाहता, क्योंकि उनके लिए अगर बात करूंगा तो फिर मैं उनका नाम लेके करूंगा तो फिर अलग से एक मैं चीज बनाऊंगा। आमीन। लेकिन अभी नाम नहीं लेना चाहता। मेरे सामने एक वीडियो आई और वो वीडियो बड़े जाने माने एक पादरी साहब हैं, यंग पादरी हैं, बड़े काबिल पादरी हैं। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान के अंदर बिद्दात का आगाज हो चुका है, बिद्दती लोग बड़ी स्पीड से उठ रहे हैं। उसने कहा बिद्दती लोग क्या करते हैं, इनका एक हेड होता है और इनकी एक अलग से किताब भी होती है जो कहते हैं कि बाइबल के साथ साथ आप ये भी पढ़ें। क्या ख्याल है? तो ये भाई बिद्दती लोग हैं, इनसे बचें। उसने काफी चीजों लोगों के नाम लिए। उन्होंने जो नाम लिए उनमें सीधा सीधा हमारा नाम नहीं लिया गया, ये बात है। लेकिन नो प्रॉब्लम, चूंकि उन्हें पता है कि क्या है और किस तरह की बात है, तो इस वजह से उन्होंने, और मैं समझता हूं कि ये बात उन्होंने सबके लिए की। मैं ये कहता हूं कि ये कोई निशान नहीं है कि आपका एक लीडर हो तो फिर आप बिदती हैं, या उसकी एक अलग से किताब भी है तो आप बिदती हैं। क्या ख्याल है? क्या यसाया पे किताब नहीं लिखी गई? यसाया की किताब है कि नहीं? बनी इस्राएल के लिए जरूरी था कोई यसाया की किताब पढ़े, लेकिन उस नबी को क्या कबूल किया गया? किया गया था। क्या यर्मिया को कबूल किया गया? वो रो रहा है बेचारा। दूसरे नबियों को कह लें हमेशा दुदकारा गया। आप बोलेंगे रेफरेंस दें भाई, कैसे दुदकारा गया, कैसे क्या हुआ, कैसे नहीं हुआ? तो क्या हुआ, यीशु मसीह ने जब होशाना होशाना चल रही है, नीचे आ रहे हैं, तो वहां पर यीशु रुक गए, यरूशलेम पर रोए थे कि नहीं? तो रो के कहा क्या? ऐ यरूशलेम तू जो, बोलेगा कौन? बोलो, तू जो नबियों को कत्ल करती आई है, यरूशलेम आई है। मजे की बात बताऊं, यरूशलेम मुजक्कर भी है और यस खुदा हमारी माँ भी है और हमारा। वो कहता है तू, और जब कह रहा है कि तू नबियों को कत्ल करती आई है, तो उसको बाहैसियत क्या समझ रहा है? वो एक दुल्हन समझ रहा है, एक कौम समझ रहा है। कहता है नबियों को कत्ल करती आई है, बारहा मैंने चाहा, है ना? किसके जरिए से? नबूवत के जरिए से, नबियों के जरिए से। बात समझ रहे हो? तो ये अजीब सी बात नहीं लगती कि सच्चाई को रद्द तो आगाज से किया जा रहा है। क्यों रद्द किया जा रहा है? क्योंकि समझ में नहीं आ रही, समझ में नहीं आ रही। तो किताब तो हर लीडर की होती है भाई, पहली बात बताओ। आप बोलेंगे नहीं उनकी बात नहीं, जो बाइबल कंपाइल हो गई उसके अलावा की बात कर रहा हूं। तो मैं फिर आपके लिए भाई, जिसने ये वीडियो बनाई, उसके लिए एक छोटी सी बात करूंगा और आपके समझने के लिए करूंगा कि भाई मुझे बताएं, इस बाइबल के अलावा आप 5 साल की सेमिनरी कहां से करते हैं? जरा बताइए मुझे, जरा खुले दिल बताइए, कहां से करते हैं? सेमिनरी की किताबें तो मेरे घर में पड़ी हुई हैं। सबसे बड़ी सेमिनरी की किताब चरवाहे का आसा, सबसे बड़ी सेमिनरी की किताब मुतालियाती शायती बाइबल, किसने लिखी? वो सबसे बड़ी सेमिनरी की किताब कोलीदुल किताब, सबसे बड़ी सेमिनरी की किताब कामूसुल किताब, किसने लिखी है? इसके पढ़े बगैर जरा मुझे पादरी बन के दिखाएं आप। क्यों जी? आप ना जाइए ते गल करनो ना। हाँ जी, गल्लां करनियां सौखियां ते औखे पालने। बोल, पर पालेगी कौन? दुल्हन ही पालेगी। सेमिनरी वाले नहीं पालेंगे, सेमिनरी वाले नहीं पालते। जो बेटी अच्छी है उसी के सर पे बाप प्यार देता है, जो बेटा सही हो उसी को कहता है पुत्र तू ही अगे लाके नस्ल में चलना है, इन्ना कुछ नहीं होगा। ये सच कह रहा हूं आपको। और यहाँ पर भी हमारा पापा है जो आपसे बड़ी उम्मीद रखता है, और अगर आज आपने वो उम्मीद पूरी ना की तो ऐसे ही रहेंगे। ये लिख के ले लें। क्या कहते हैं, जब पुत्र सतई खैरा ने, कैसे खैरा है? कुछ खुशी दिखाई है, आप खुश होके कह रहे हैं, बात समझ रहे हैं? और अगर आपने खुशी नहीं दिखाई तो कभी नहीं कहेगा, कभी नहीं कहेगा। आमीन। तो क्या है ये बातें? बिद्दत नहीं है। जो बातों को हर जमाने में खुदा ने 7 फरिश्ते भेजे हैं, वो चीजों को खोलने के लिए भेजे हैं। खुदा ने इस जमाने में नबूवत का कहा था
کہ एलाइजा की स्पिरिट आएगी और वो बहाल करेगी, रिस्टोर करेगी। अब वो कहां से आएगी ये हम नहीं जानते, किस रंग की होगी, किस जुबान की होगी, इससे मुझे कोई नहीं। और मैंने बताया कि आपकी बाइबल भी इब्रानी में है, इसे ट्रांसलेट करके आपके लिए आसान किया गया है। तो आप क्या पढ़ेंगे नहीं? क्या आज गैर कौम के लोग नहीं कहते कि यीशु ने तो कहा था मैं बनी इस्राइल के लिए आया और फिर आप कादे क्रिश्चियन हो? वो तो यहूदियां तो खुद भी यहूदी सी, तुसी ईसाई क्रिश्चियन ईसा एवं ही विच जनाब बेगानी शादी में अब्दुल्ला दीवाना वाली बात है ये। पर उन्होंने कहा दी को पता है इस गल, खुदा के प्लान को वो कैसे जाने? खुदा का प्लान पहले बड़े के लिए फिर छोटे के लिए, लेकिन बुनियादी तौर पर सफर जहां पर खत्म होता है वो छोटे पर होता है, और जिस पर खत्म होता है वही सच होता है। जिससे शुरू हुआ वो कुछ और होता है। आप शुरू तो कर लेते हैं, पहुंचते नहीं तो आपको कौन काबिल कहेगा? बताएं मुझे, आप पहुंचे नहीं तो काबिल नहीं है, कुछ भी करके आपने पहुंचना है। आमीन। तो मैं बताता हूं मेरे अजीजों, ये बिदअत नहीं है। जो आप पे रेवलेशन खोले चाहे कहीं से भी आए, कहीं से भी। और खुदा इतना नाइंसाफ नहीं है कि अपने बीज से वो बंदा ना लेकर आए। खुदा बाहर से नहीं लाता, अपना ही बीज लेकर आता है। और मैं कहता हूं कोई एक बंदा, कोई एक सेमिनरी का बंदा, सच्ची बात कह रहा हूं, इसे टारगेट चैलेंज करके दिखा दे, जो कुछ भी बोला गया बाइबल से बोला गया। आमीन, हालेलुया। अब मैं बता रहा हूं आपको, बार बार बता रहा हूं, यस्सु को बिदती कहा गया, उसके नबियों को बिदती कहा गया, रसूलों को बिदती कहा गया। आज अगर उसके रेवलेशंस को खोलने वालों को बिदती कहा जाता है, और मैं कहूंगा ऐसा है कि बिदतों का होना जरूर है, पर कौन सी बिदतें? हम कहते हैं कि निकले थे हम फतह करने, खुद ही हम शिकस्त खा के आगे। इसका मतलब क्या? क्योंकि अपने चोना है नहीं सी, वो सारियां गल्लां ते साडे ते लगदियां, असीं दूजियां ते लांडे सन। तो बिदत वो है जो इंप्लीमेंट ना हो, जो साबित ना हो, है ना, जो साबित ना हो। तो मैं कहता हूं यीशु मसीह के नाम का बपतिस्मा, उसके बगैर कोई बपतिस्मा साबित करके दिखाओ। आमीन। यीशु मसीह दुल्हन के अलावा या बर्रा की बीवी के अलावा कलीसियाओं को लेने आ रहा है, जरा साबित करके दिखाओ, बताओ मुझे। किताबे हयात के दो हिस्से हैं, एक बर्रा का कॉन्टेक्स्ट है, एक हिस्सा इंडेक्स है और दूसरा कॉमन है। हयात की किताब के दो हिस्से हैं, एक हिस्से से नाम काटे जाते हैं और दूसरे में से काटे और डाले भी नहीं जाते, वो प्रीडेस्टिनेट। तो ये चीजें कौन बताएगा? ये दो नस्लों का मामला है, कौन बताएगा आप? क्यों? क्योंकि उनकी सेमिनरी इसके अगेंस्ट। और सेमिनरी कहां से आई है? साइंस, लॉजिक मांगते हैं। और जब लॉजिक आ गया, लॉजिक मतलब कुछ साइंस दसो जी, कोई निशान दसो जी, यीशु को भी कहा गया। और जब ऐसा कहा गया तो ये कौन सा बीज था? काइंड ऑफ गॉड नहीं था भाई, हमेशा यीशु के खिलाफ, उसके नबियों के खिलाफ, है ना, और उसके मकसद के खिलाफ। यीशु का जो मकसद खुदा में से, खुदा के जरिए से, यीशु में से होकर जो खुदा का मकसद था, और फिर आगे रसूलों में से होकर जो यीशु का मकसद था, और फिर हमारे जमाने में दुल्हन में से होकर जो यीशु का मकसद है, उसके अगेंस्ट ही रहे हैं, उसके मुखालिफ भी रहे हैं हमेशा से। और कौन रहे हैं? जो खुदा का बीज नहीं है। आमीन। जबकि हम खुदा का बीज हैं। मेरे अजीजों, हम खुदा का बीज हैं। अगर हम भटक चुके हैं तो भटके हुओं को जो है खुदावन ढूंढ रहा है। आप हाथ पकड़ा दे। मसला मैंने पिछली बार भी बताया, कई बार बताया कि अगर नहीं बन पाती आपसे, हाथ तो पकड़ाए ना यार। और अगर आपने हाथ पकड़ाया और बोलो चेंज नहीं हो रहे, तो पकड़ाया नहीं आप। इंज कदी नहीं हो सकता कि यस्सु ਨੂੰ कुछ छू जाए तो खून ना रुके, ऐसे नहीं हो सकता। फिर तो हम, खुदा माफ करे, ऐसा कभी नहीं हो सकता। मैं ऐसे अल्फाज नहीं बोल सकता कि फिर हम खुदा के कलाम पे शक करने वाले हैं कि सच्चा कि खुदा के कलाम च लिखा जो छू लेंदा सी, वो है ना, हरामकार औरत जो है उसका दिल पसीज गया, बदल गई वो, और ऐसी बदली के दोबारा नहीं गई वापस। समझ रहे मेरे भाई? जागे जरा। आप फालतू कौम नहीं है, फालतू कलीसिया नहीं है। दुनिया मरने के करीब है, और ऐसा बिल्कुल आप समझ रहे हैं, सारी बातें आपको पता है ना। ये जंगें और सारा कुछ हो रहा है ना, हो रहा है कि नहीं? लोगों की जान में जान नहीं आ रही, और आप सोए हुए। आपको लग रहा है नहीं यार, वो कर लो, वो कर लो, ये कर लो, वो कर, ये करो भाई, ये करो। अगर कर सकते हो तो यही बचाएगा, और कुछ नहीं बचाएगा। अच्छे कपड़े, अच्छा फोन, अच्छी जॉब, अच्छे मामलात, अच्छी रिश्तेदारी, अच्छे दोस्त, कुछ कोई नहीं। जिन्नी छेती है समझ लो चंगे रहोगे। मैं खुदा का नौकर और आपका खादिम मसीह में आपको आज ये बात बताता हूं, अगर आप खुदा का बीज हैं, मुझे नहीं पता, खुदा को पता है, मैं जज नहीं, खुदा का कलाम जज है, खुदा का कलाम ही जजमेंट करेगा। और उसके बाद अगर कोई जज है तो आप खुद है अपने, आप अपने जज खुद है। अपनी जजमेंट करें, अपने आप को दुरुस्त करें, है ना, कोशिश करें मसीह में आ जाए भाई। गॉड ब्लेस यू ऑल। आप खुदा का बीज है। मेरी दुआ है कि आप खुदा का बीज रहें, और आप साबित करें कि आप खुदा का बीज हैं। आप साबित करें आप शेर के बच्चे हैं। आप साबित करें आप उकाब की औलाद है, आप में उकाबी दम है। साबित करें। आज जरा तहियाकारी लें, कर लें तहिया। क्या हो जाएगा? एक ही काम होएगा, ताड़ा अब्दियत की जगह मिल जाएगी, और कुछ नहीं होएगा। और यही हम चाहते हैं। गॉड ब्लेस यू ऑल। खुदावंद आपके साथ। हालेलुया। खुदावंद इस कलाम के पढ़े और सुने जाने के मुताबिक हम करते हैं। गॉड ब्लेस। तारीफ हो खुदावंद के नाम।